and one parenting myth you would like to break. Parent is the best advisor. So, why do you believe early childhood education plays such a crucial role in shaping students for long-term career and life success? Pankaj, early education is the fundamental of any education for a human being. When a child goes to the school for the first time in a kindergarten or a play school, preschool, that is the place where the basics of education are laid for his entire journey. So, आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं माइलस्टोन और अचीवमेंट्स में. सो हाउ कैन दे बैलेंस ये, इनको कैसे बैलेंस करना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो ये होती हैं कि हम अपने हिसाब से बच्चों को कोई भी करियर या प्रोफेशन में इंक्लाइन करें, जो कि एक गलत बात है. अगर हम बच्चे की टैलेंट्स को, उसकी रिफ्लेक्सेस को, उसके लर्निंग स्टाइल को, उसकी ब्रेन डोमिनेंस को, उसकी एक्वायरिंग स्टाइल्स को पहले से ही जान लें, तो हम बहुत अच्छे एक फ्रेंड और गाइड बन सकते हैं. Welcome to another episode of Kia Consultant, Global Leaders and Educators, a platform where we engage with education visionaries and change makers who are shaping students not only for academic success in India, but for a confident and meaningful global future. At Kia Consultant, as study abroad specialists, we strongly believe that a student's international journey does not begin at grade 12. It begins much earlier with the right foundation, values, and mindset. Today, we are honored to welcome CA Dr. Rajiv Gupta, founder of Golden Bell Early Years, an educationist who has made a significant impact in early childhood education. Beyond his role as an education entrepreneur, Dr. Gupta is actively associated with various NGOs, has received multiple awards for excellence in education and social service, and is also respected ED talk speaker, sharing insight on holistic learning and child development. Dr. Gupta's work reflects a rare blend of academic vision, social responsibility, and global perspective, making him an ideal voice for today's conversation. Dr. Gupta, very welcome to today's episode. So, Dr. Gupta, your journey from being a chartered accountant to early years educator and a leader in that field, that's so inspiring. So, what motivated you? Thank you, Pankaj, for inviting me for today's talk session. As I was just talking to you, my school education was into science with medical. Then I had to shift accidentally to BCom honors, and then eventually I became a chartered accountant and a cost accountant. And then I served for a good number of 10 years as a decade in the multinational companies. And lastly, I was vice president of GE. And then during those days, my father, who is former secretary of CBSE, he just retired. And he had a dream of opening a global preschool. So that moment motivated me, and then I left my service industry once and for all. And since last 25 years, I'm into the preschool education, serving the young tiny tots across the country under the name of Golden Bells Early Years. And in last 15 years, we have been able to establish ourselves as pioneers and leaders in introducing multiple intelligence curriculum, which we proudly call India's first multiple intelligence based preschool. So we started our journey in 2004 from Ashok Vihar, North Delhi, and now by God's blessing we are having our centers in 3 states, 3 in Delhi, 1 in UP in Greater Noida, and 1 in Haryana in Gurugram. So Golden Bells Early Years is expanding, and everyone is a leader in its own way. So we are leaders in introducing and pioneering the concept of multiple intelligence in early child education. Wow, that's amazing to hear that. And it's been itna variety of experience and exposure you have. That's so much. I'm very sure that the podcast is going to be a huge success. Thank you. So let me ask the next question to you. So why do you believe early childhood education plays such a crucial role in shaping students for long-term career and life success? Pankaj, early education is the fundamental of any education for a human being. When a child goes to the school for the first time in a kindergarten or a play school, preschool, that is the place where the basics of education are laid for his entire journey.
As we all know, the initial growing of a child, the brain is developing and all the intelligences are being developed in the initial stages of the human body. So initial 4 to 5 years of the journey of the child's biological age, if it is complemented with the preschool education, then the child can become a superstar. That is the time when we introduce our specialization of multiple intelligence, where each and every child is taught in the way the child wants to be taught. There is a huge teaching and learning gap in Indian education system, and I've been conversing it for the last 15 years. That gap should be diminished, and India should be a country which should be tuition free. And we preschool owners have a huge responsibility on our shoulders to help settle the child from the warmth of the mother into a place which is another home for the child. And as rightly our school golden bell signifies, gold is a symbol of purity and bells is a symbol of divinity, where we provide education to the child and the parents in the most pure and divine way. So I think play school industry has a major role in shaping up the future of India. That's so wonderful to hear, and I'm sure the audience must be looking forward how exactly this will going to happen. Right? So from a study abroad perspective, we often see that the students who succeed internationally, they have very strong foundation in their early education. What early life skills help students succeed in global education system? देखिए, to succeed in any field, the first and the foremost thing is education. You may become whatever you want to become. Education is the fundamental and the core area of any human being's success or failure. And early years education, if it is implemented by the school to the learner in the most effective way, then the child can, during his formal schooling of 15 years now as per the new education policy, can become a global leader. And as you mentioned, for study overseas, the universities and colleges across the globe, they are looking for children who are good in academics, good in theatre, good in sports, and good in communication. So these 4 parameters, like the 4 quotients of our life, are intelligence quotient, which is taken care by the academics, the creative quotient, which is taken care by the theatre and stage performance, the adversity quotient is taken care by the ability of the child to perform in situations which are adverse. So that child will be a very good sports person. And lastly is the emotional quotient, which takes care of the communication and understanding of oneself and the other person. So these 4 quotients again combine to make 8 intelligences, which is our forte. And once we are thorough with these 8 intelligences, that child can be a global leader in whatever field the child wants to be. Oh, thank you so much. That's such a great insight. कि मेजॉरिटी हम लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता जो आपने अभी इनसाइट्स दिए हैं, ये एग्जैक्टली क्या है. सो शायद ये चीज़ें हम अगर बचपन से ही इनकलकेट करें बच्चों में, और ये शायद हमारे टाइम में नहीं था, बट अब शायद आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में. आई एम श्योर ये इसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाने वाली है. सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पॉडकास्ट. सो ये हमारे टाइम पे नहीं था, और शायद हमारे को अवेयरनेस होती तो हम लोग शायद एक अलग स्किल के होते. मैं आपको थोड़ा सा रिकरेक्ट करूँगा. हमारे टाइम पे भी था, और ये हमारे टाइम का ये तो 4-5 हज़ार साल से परंपरा चली आ रही है. कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में पूरे हर रोज़ सुनते हैं कि ये बच्चा माँ की पेट से सीख के आया, ये तो पैदाइशी ऐसा है, ये तो गॉड गिफ्ट है, ये तो शुरू से ही ऐसा है. तो ये जो 4 लाइनें जो मैंने बोली आपको, ये हमारा जो इंटेलिजेंस का कोरिलेशन विद आवर एपिडर्मिस. इंटेलिजेंस इज़ आवर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स हैं, और हमारी स्किन जो हमारी बॉडी है, एपिडर्मिस, एपिडर्मल ग्रोथ सेल्स और न्यूरॉन ग्रोथ सेल्स जो होते हैं, उनका जो लिंकेज होता है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली मैंने जब स्टडी किया मुझे पता चला. जब चाइल्ड वूम में होता है एज एन एम्ब्रियो, तो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है, उस दौरान बच्चे की इंटेलिजेंसेस, बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे की बिहेवियरल स्किल्स, बच्चे की सारी ब्रेन डोमिनेंस डेवलप होती है. और उस स्टडी को द लिंकिंग ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ सेल्स एंड द न्यूरॉन ग्रोथ सेल्स की स्टडी को नोबेल प्राइज़ मिला 1983 में. उस बेसिस पे द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बनी थी. डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. और उस थ्योरी के बेस पे हमें पता चला कि ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ह्यूमन बीइंग इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंट.
तो वो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को स्टडी करके मैंने उसके ऊपर PhD किया है। और उसके बेस पे मैंने अपने स्कूल का करिकुलम बनाया, जो कि गोल्डन बेल्स का करिकुलम है कि हर चाइल्ड यूनिक है, पर हर चाइल्ड के लिए प्लेइंग एरिया सेम है, लेकिन रूल्स भगवान ने सबके लिए सेम बनाए हैं, और लेकिन सबकी इंटेलिजेंस डिफरेंट है। तो ये अगर हमें अपनी इंटेलिजेंस अगर अर्ली ईयर्स में पता चल जाए और उस पर पेरेंट्स फोकस करें स्टार्टिंग से ही, देन द चाइल्ड कैन बिकम अ सुपरस्टार। Wow. How important are communication skills, independence, curiosity, and confidence in preparing students for future international exposure? Every single trait is very important. आपने सबसे पहले बोला कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैं इसको अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से लेकर जाता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल वो अच्छी होती है जिस बच्चे का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए 8 इंटेलिजेंस हैं, नॉन 8 इंटेलिजेंसेस हैं। वन इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसका मायने होता है कि हमारा अपने से और हमारे सामने जो लोग बैठे हैं उनके साथ रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन कैसा है। अगर हम जो बात कर रहे हैं ऑडियंस को अगर समझ नहीं आ रही, हम जितने भी अच्छे वक्ता हों, हमारी कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है। लेकिन हमने जो बोला और जो हमारे सामने जो ऑडियंस बैठी है, जो स्टूडेंट है, उसको वो बात समझ आ जाती है उसके वे में, तो आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे कवर हो गए। इंट्रापर्सनल स्किल सेकंड इंटेलिजेंस है, जो ये कहती है कि जो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, हम उसका जो जवाब दे रहे हैं, हम बिना सोचे समझे दे रहे हैं, सोच समझ के दे रहे हैं, या जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि हमने सुना, हमने उस पर रिएक्ट करने के लिए हमने कितना टाइम लगाया, या बिना माइंड को प्रोसेस किए हमने उसका जवाब दे दिया। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हमारी खुद से कम्युनिकेशन और हम हमारे सामने जो ऑडियंस बैठी है उसके साथ हमारा क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है वो दर्शाता है। उसी पैरामीटर की वजह से एक बच्चा एक टीचर को गुड टीचर और बैड टीचर की श्रेणी में डाल देता है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल जो इंटर एंड इंट्रा इंटेलिजेंस है। थर्ड इंटेलिजेंस हमारी आती है विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस ये कहती है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं कि हम उसको मेमोराइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ लिंक्ड है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस कि हम जो सुन रहे हैं उसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ लोग बोलते हैं नॉइस आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं साउंड आ रही है। नॉइस बोलती है हमें लगता है शोर है, साउंड बोलती है हमें लगता है आवाज़ है। तो अगर हम स्कूल में बैठे हैं और हम बोलेंगे बच्चों की नॉइज़ है, ये बच्चों का शोर आ रहा है, तो हमें स्कूल में बैठना नहीं चाहिए। बच्चों की आवाज़ें होती हैं, लेकिन बाहर जो गाड़ी चल रही है उसकी हो सकता है शोर आ रही हो। तो ये विजुअल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस को मिला के बनता है हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिव क्वोशंट। उस फील्ड में अगर हम अच्छे हैं तो हम बहुत अच्छे स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। फिफ्थ इंटेलिजेंस हमारी है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, और सिक्स्थ है काइनेस्थेटिक। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ये कहती है कि हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी हैं, कि हमारे आस पास 360 डिग्रीज में क्या हो रहा है, आर वी अवेयर और वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। एंड उसके साथ काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है जो कि कहती है हमारी बॉडी मूवमेंट्स कैसी हैं। तो जिन बच्चों का काइनेस्थेटिक और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे मास्टरी होगी वो स्पोर्ट्स में आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि वो अब देखेंगे कि हमें भागना भी है और हमें बॉल को कैच भी करना है, तो वो दोनों चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं। सेवन्थ इंटेलिजेंस हमारी है लिंग्विस्टिक, और एट्थ है लॉजिकल। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर हमारी वर्बियाज कैसी है, हमारे शब्दों का चयन कैसा है, और उसी के साथ लिंक्ड है हमारी लॉजिकल इंटेलिजेंस कि हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस बच्चे का लॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे मास्टरी होगी उसका इंटेलिजेंस क्वोशंट हाई होगा। तो आपने जो 4 पॉइंट्स बताए थे उसको हम 8 पॉइंट में समराइज़ कर देते हैं, और यही हमारी थ्योरी कहती है कि हर बच्चे के अंदर 8 इंटेलिजेंस हैं, उसका पैरामीटर कितना है यही हम जज करते हैं। जो बच्चे की इंटेलिजेंस कहीं पे वीक है उसको हम टोन अप करेंगे, उसको एक ऐसे लेवल पे लेकर आएंगे ताकि वो एवरेज हो जाए और वो फिर एक पूरा मल्टीपल इंटेलिजेंट चाइल्ड बन जाता है। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ऑडियंस को भी ये सुन के बड़ा डिस्क्रिप्टिव इतना डिटेल्ड समझाया, शायद बहुत सारे लोगों ने, और शायद मैंने कभी ऐसा नहीं डिटेल्ड इसको समझा। तो आई एम श्योर कि ये सारी इनसाइट सबके लिए बड़ी वैल्यूएबल और यूजफुल होंगी। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in your experience, does early exposure to structured yet flexible learning make students more adaptable when they later move abroad for education? Early years, I think, should be unstructured. Okay. क्योंकि फॉर्मल स्कूल में तो उनको स्ट्रक्चर होना ही होना है। तो अर्ली ईयर्स इज बेसिकली जितना अनस्ट्रक्चर्ड होगा उतनी ज़्यादा बच्चों को लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होगी। हम लोग जब पंकज जी पढ़ते थे हम लोगों को बताया जाता थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब जमाना चेंज हो गया, देयर इज़ नो बॉक्स, तो थिंक।
ओके क्योंकि बॉक्स आते ही हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डिफाइन हो गए कि कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है। अब कोई बॉक्स ही नहीं है, तो यूनिवर्स है, मेटावर्स है, मल्टीपल यूनिवर्स चल रहे हैं आज की डेट में। और अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है। मेरी एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट है, आई डोंट नो डैट आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता। तो गूगल में इतनी वर्ल्ड में इतनी नॉलेज है कि हमें यही नहीं पता कि हमें ढूंढना क्या है गूगल के ऊपर। तो स्ट्रक्चर वर्ड तो प्ले स्कूल इंडस्ट्री में अर्ली ईयर्स में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस आर दी फाउंडेशन स्टेज। जो अब NEP जो आई है उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि फर्स्ट 5 years ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम प्री नर्सरी, नर्सरी, KG, लोअर KG, क्लास 1 एंड क्लास 2 दे विल बी दी अर्ली ईयर फाउंडेशन स्टेज। तो उसमें तो जितना एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं करें, तो स्ट्रक्चर तो बाद में बनाएंगे। Okay, thank you. So parents usually approach us while the students are in their class 8th, 9th और 10th. So ऐसा पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए या आइडियली क्या स्टार्ट करना चाहिए जस्ट टू प्रिपेयर देम कि बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, तो उनको पहले से क्या प्लान करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो माँ बाप यही बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा बच्चे को कराना क्या है। जब मैंने ये अपनी थ्योरी शुरू करी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जिसके ऊपर मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ द आवर। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में, जैसे आपने सही बोला, 8, 9, 10th में सोचता है। 8, 9, 10th का मतलब है बच्चे की उम्र करीबन 15-16 साल हो जाती है। वहीं पे हम लैग कर जाते हैं। हमने बच्चे के पहले 15 साल तो एक तरह से वेस्ट ही कर दिए। यही हम यूरोपियन पेरेंट्स की बात करें या अदर एशियन कंट्रीज़ की बात करें, तो उनका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम, कि हम बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्ली ईयर्स कराएं और उसके ऊपर फोकस करें, और हम बच्चे के को पेरेंट, को पार्टनर बने, ना कि हम बच्चे को डिक्टेट करें कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था, सर्वे किया था मैंने अराउंड 10,000 पेरेंट्स का, दिल्ली NCR के टॉप स्कूल्स का, कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। सरप्राइजिंगली पंकज जी, माँ बाप के आंसर आप सुनोगे तो आपको आज के ज़माने में हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं। माँ बाप ने आंसर्स, मुझे 95% माँ बाप ने जो आंसर दिया वो ये दिया कि हम अपने बच्चे को वो बनाना चाहते हैं जो हम खुद कर रहे हैं। जिस प्रोफेशन में हमें, हमारा बच्चा भी वही करेगा ताकि हमारी लेगेसी आगे चलती रहे। या मेरा बच्चा वो करेगा जो हम नहीं कर पाए, कि अगर मैं फिल्म स्टार बनना चाहता था तो मैं नहीं बन पाया, तो मैं अपने बच्चे को XYZ कोई भी प्रोफेशन है, आप देखेंगे दोनों आंसर्स के अंदर जो 95% पेरेंट्स में बच्चा कहाँ है। बच्चे के बारे में तो माँ बाप सोच नहीं रहे। सिर्फ 5% पेरेंट्स ने बोला था कि हम अपने बच्चे को वो कराएंगे जो बच्चा करना चाहता है, और उसके साथ हम उसके प्रोज और कॉन्स निकाल के उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो वी आर दी कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड, नॉट दी ओनर ऑफ द चाइल्ड। यही सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप बच्चे के एडवाइज़र हैं, गाइड हैं, फ्रेंड हैं, पेरेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके ओनर नहीं है। तो बच्चे को वो करने दीजिए जो बच्चा करना चाहता है। अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोगों की पूरी प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस हैं और पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है कि बच्चा ये करना चाहता है। अब हम उसको बैठ के गाइड करते हैं, और फिर आपके पास जो बच्चे आते हैं ओवरसीज़ जाने के लिए, एक्सप्लोर करें, क्यों ना करें एक्सप्लोर। तो ओवरसीज़ स्टडीज़ करें या इंडियन कहीं पे भी करें, स्टडीज़ एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। द थिंग इज़, ओवरसीज़ जाने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें बच्चे की जो खुद की रुचि है वो भी उसके साथ लिंक्ड हो जाती है, और वो बच्चा वहाँ पे जाके एंजॉय करता है स्टडीज़ को। साइंस का बच्चा हो सकता है मैं कॉमर्स भी पढ़ रहा हूँ, या ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा वहाँ पे जाके साइंस का सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, तो क्यों ना करें हम एक्सप्लोर। तो यही है मल्टी यूनिवर्स, मल्टी मेटावर्स का मतलब यही है कि जो आपके मन में है वो करिए, तो देयर इज़ नो बॉक्स एट ऑल। थैंक यू। सो हाउ कैन अर्ली एजुकेशन हेल्प building cultural sensitivity and openness, which qualities that are essential for students studying abroad? देखिए, अर्ली एजुकेशन अगेन सब कुछ हम सिखाते हैं बच्चे को। वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू टीच टू द चाइल्ड ड्यूरिंग दोज ईयर्स, चाहे मदर टंग है या स्टेट लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, तो बच्चा सीख जाता है। सारे सब्जेक्ट्स बच्चा इसी टाइम पे लर्न करता है। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बच्चा सब अर्ली ईयर्स में लर्न करना शुरू कर देता है। तो अगर हम बच्चे को एक्सपोजर देंगे ज़्यादा नॉलेज का
अकॉर्डिंग टू द एज, तो आई थिंक द चाइल्ड कैन बिकम अ ग्लोबल चाइल्ड. यही हमारा पर्पस है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड हु कम्स टू अ प्ले स्कूल. सबसे पहले ये बात है कि बच्चे को प्ले स्कूल आना ज़रूरी है. बहुत सारे माँ बाप बच्चे की प्ले स्कूल एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दैट इज़ अ क्राइम टू द चाइल्ड्स ग्रोथ. तो अर्ली एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अर्ली एजुकेशन करने के बाद उसके साथ उनकी एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है उसकी, वो टीचर का और स्कूल का रोल हो जाता है कि मैनेजमेंट कितनी एकेडमिकली रिच है. वहीं पे फिर वो उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे जाके उसका प्राइमरी ईयर्स और उसके मिडिल स्कूल और सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल अच्छे होंगे. और वो बच्चा फिर मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा और वही बच्चे फिर आगे जाके आर दी फर्स्ट चॉइस फॉर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ टू पिक दो चिल्ड्रन. राइट. क्योंकि नंबर लाना 95% 96% नंबर लाने की वैल्यू अब इतनी नहीं रही है जितना कि बच्चे को ग्लोबल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स मांगते हैं. दैट्स करेक्ट. राइट, थैंक यू. सो आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं माइलस्टोन और अचीवमेंट्स में. सो हाउ कैन दे बैलेंस, ये इनको कैसे बैलेंस करना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो ये होती है कि हम अपने हिसाब से बच्चों को कोई भी करियर या प्रोफेशन में इंक्लाइन करें, जो कि एक गलत बात है. अगर हम बच्चे की टैलेंट्स को, उसकी रिफ्लेक्सेस को, उसके लर्निंग स्टाइल को, उसकी ब्रेन डोमिनेंस को, उसकी एक्वायरिंग स्टाइल्स को पहले से ही जान लें तो हम बहुत अच्छे एक फ्रेंड और गाइड बन सकते हैं. और अब जैसे लास्ट 5-6 ईयर से आपने देखा होगा कि जो वेटेज ऑफ मार्क्स ख़त्म हो गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर. अब सब जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर तो आपकी MCQs और आपकी जो जनरल नॉलेज है अबाउट दी सब्जेक्ट एंड दी लैंग्वेज वो इम्पॉर्टेंट है. और वो इसीलिए शायद गवर्नमेंट भी इंक्लाइंड हो रही है क्योंकि ग्लोबल एजुकेशन ये कहती है कि आप सिर्फ रोट लर्निंग से नहीं आएंगे, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आएंगे. तो बहुत सारे स्कूल्स आप देखेंगे आजकल अब एक्सपीरियंशियल स्कूल्स या लर्निंग स्कूल्स बन गए हैं. वो इसलिए बन गए हैं क्योंकि आपको वहाँ सोचने का मौका मिलता है. जितना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम रीजनिंग, लॉजिकल, क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन के ऊपर जाएंगे. और इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फॉलोअर्स. आप याद रखिए, इंडिया इज़ नॉट अ लैंड ऑफ लीडर्स. बहुत कम लीडर्स मिलेंगे आपको. अभी भी हम महात्मा गांधी और नेहरू जी और कपिल देव और सुनील गावस्कर बोलते हैं, जो कि हमारे फोर फादर्स से भी बहुत पहले के टाइम से वो हैं. लेकिन इंडिया ने लीडर्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किए हैं. तो जितने ज़्यादा लीडर्स होंगे, लीडर्स जब भी आएंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे. अगर हम क्वेश्चंस को दबा देंगे कहीं पे भी, स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या घर के अंदर भी, हम लीडर्स नहीं बना पाएंगे. तो पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जितने भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहता है बच्चा आपका, पूछें. आपके पास जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का आंसर हो, लेकिन कम से कम बच्चे को क्वेश्चन पूछने दीजिए, उसको अपनी ड्यूटी पूरी करने दीजिए. आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड टू आस्क. राइट. एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑलवेज हेल्प्स यू बिकमिंग अ ग्रेट लीडर. थैंक यू सो मच. सो व्हाट कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक डज पेरेंट्स डू जिससे बच्चे आगे जाके उनको डिसीजन मेकिंग में या अपने कॉन्फिडेंस में जिससे लेके जाके इशू होते हैं? तो ऐसे क्या पेरेंट्स मिस्टेक करते होंगे? सबसे कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट करते हैं वो अपने बच्चों का कंसर्न नहीं करते. वो हियर से करके कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, या उसका सिबलिंग क्या कर रहा है, उसके बेस पे उसका करियर डिसाइड कर लेते हैं. पहली बात. दूसरी बात, इंडिया के अंदर क्वालिफाइड करियर काउंसलर्स नहीं है. That's true. तो वो एक काउंसलर एक बच्चे की ज़िंदगी को वहीं मेक और ब्रेक कर देता है उसमें. क्योंकि जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट है, साइकोमेट्रिक है या वटेवर, कोई भी कॉन्सेप्ट से हम बच्चे की टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे अपने कोलीग्स या अपने सिबलिंग्स का या पीयर ग्रुप के आंसर्स को वहाँ पे फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका करियर वहीं डिसाइड हो जाता है, वो जो कि बहुत एक क्रिमिनल थिंग है. तो करियर काउंसलर्स के लिए गवर्नमेंट को एक कोई क्वालिफाइड कोर्स या कोई क्वालिफाइड प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो उनके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और खुद ही उनको सिक्योरिटी नहीं है. आप तो चुनिंदा लोगों में से हैं जो बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली में बैठे हैं, कैपिटल सिटी में बैठे हैं, लेकिन आप अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो आपके पास आने के लिए बच्चों को कहाँ से नॉलेज मिलेगी. तो इस तरह से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि टीचर्स और काउंसलर्स को बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट
एफिलिएशन प्रोवाइड करें, जिससे उनके आगे लाखों बच्चों की जो ज़िंदगी वो बताते हैं उसके ऊपर कंट्रोल या मॉनिटर है। तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड एंड रिसर्च के कौन सा काउंसलर अच्छा है और कौन सा काउंसलर के पास जाना है, नहीं जाना है। दैट्स सो करेक्ट। हमारे पास भी बच्चे आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं आप बता दो क्या कोर्स करना चाहिए। स्कूल में कोई काउंसलर नहीं है, बट कुछ स्कूल्स ने दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस कि उनके स्कूल में काउंसलर हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू। बट यस, मेजॉरिटी ये आप बता दो इसका भाई ये कर रहा है, इसका भाई ये कर रहा है। तो हियर से ऐसे चल रहे हैं वो वहाँ पे फिर बच्चे की जो पूरी लाइफ एग्जिस्टिंग और लिविंग में डिस्टिंग्विश हो जाती है कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा, या मैं इसकी वजह से कर रहा हूँ या उसकी वजह से कर रहा हूँ। जब तक बच्चा खुद नहीं बोलेगा ये मैं करना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप ने या मेरे एनवायरनमेंट ने मुझे सपोर्ट किया, जब तक वो आगे जाके सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएगा। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट इज़ अबाउट लिविंग योर लाइफ। Right. And this is for the audience also. Most of the people, most of the students who come to us and they say कि आप बता दो क्या कोर्स करना है। So my son has done computer science, और बच्चों से पूछो कि आपने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है, बट he doesn't want to do it further. बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसे मिले हैं जिन्होंने सीधा बोला कि मैंने बैचलर्स, और कई बार बच्चे अपफ्रंट बोल देते हैं, कई बार बोला कि मैंने पेरेंट्स के कहने पे कर लिया, बट दिस इज नॉट कप ऑफ माय टी, एंड दे हैव टू चेंज। जिंदगी पिंच रहेगा उनको कि मैंने उसकी वजह से किया या उसकी वजह से किया। Yeah. अपनी वजह से जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम सक्सेसफुल लाइफ नहीं लीड कर सकते हैं। That's so true. Yeah. और अपनी वजह से जानना वही सबसे बड़ा काम है काउंसलर का। Right. और उसी में मैं और आप जैसे काउंसलर्स बच्चों को गाइड कर पाते हैं। Right. Yeah, thank you. So, what do you observe the difference between an Indian education system and the countries which are developed, you can say, like US, UK, Australia, New Zealand, Canada? What is the difference between? Things are evolving now. अभी भी लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम is no system at all. Unfortunately, a land of 150 crore people, and we do not have our own education policy. We are just doing cut, copy, paste of European and American systems and implementing in India. इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि बच्चे को, ये कोई भी एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि बच्चे को सबसे पहले समझें, उसकी नीड्स को समझें, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो माइंड है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑब्जर्व करें, और उसके बेस पे जाके उसको उसके मुताबिक या उसकी पैशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने दीजिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ मोर ऑफ इम्पोजिंग and thrusting on the child rather than understanding the needs of the child. फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं या जो बच्चे किसी फिज़िकल कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं स्कूल्स में, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, हमारे पास ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं, हमारे पास ट्रेंड काउंसलर्स नहीं हैं, हमारे पास स्कूल्स नहीं हैं। अभी भी 70% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जो रूरल में रहते हैं वो क्लास 5 या 6 के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अभी बहुत मेहनत करनी है, अभी वो ग्रास रूट लेवल पे भी उतना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और इट इज़ मोर इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न एजुकेशन। अब हमारे यहाँ से बच्चे जो हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन होता है, तो बाहर इसलिए जाते हैं बच्चे क्योंकि बाहर रिसोर्सेज हैं, रिसर्चेज हैं, दे स्पेंडिंग मनी ऑन R&D, एक्सपेरिमेंटेशन। और जो हम लोग भी बोलते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे आज मल्टीनेशनल कंपनीज पे CEO या CFOs बन के बैठे हुए हैं, वो सब इंडिया से गए हुए हैं। तो इंडिया से बाहर जा क्यों रहे हैं वो? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इंडियंस आर बेसिकली वेरी लेबोरियस, वेरी हार्ड वर्किंग। Why do they go outside? Because of the resources and infrastructure and the reputation and the prestige which they get from the job. Right. तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत अभी इवॉल्व होना है, और उसको बहुत फोकस होना है अभी, जो कि हम अभी जब तक हमारी हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग इसको ऐसे ही लिंगर ऑन करते रहेंगे। That's correct. Yeah. So, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस आपको लगता है कि पेरेंट्स को या स्कूल को अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि बच्चा उनका इंटरनेशनली जहाँ बाहर अच्छा करे, उसके लिए प्रिपेयर अभी से करें? पेरेंट्स को सबसे पहले तो स्कूल को ट्रस्ट करना चाहिए। आज की डेट में पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट स्कूल। दे थिंक दैट स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर दे आर जस्ट गिविंग फीस एंड दे ओन द स्कूल। जो टीचर की रिस्पेक्ट है, हम टीचर्स डे पे विश तो कर देते हैं एक साल में एक बार, उसके बाद फिर हम स्कूल को पूरे साल ब्लेम करते रहते हैं। तो ट्रस्ट बिटवीन दी पेरेंट एंड दी टीचर कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उन दोनों कम्युनिटीज़ को बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन द स्कूल एंड दी पेरेंट्स एंड दी चाइल्ड, वो ट्रस्ट होना चाहिए। थर्ड इज़ द गवर्नमेंट। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
करिकुलम जो है, हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ाना चाहते, वो सारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। हिस्ट्री आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में हिस्ट्री को बार बार चेंज करते जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में है अभी, वो अपने हिसाब से हिस्ट्री पढ़ाना चाहती है और वो ब्लेम गेम कर रही हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो करना चाहिए था। मैं तो सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर हम अपने पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे और अपने फ्यूचर को उसके बेस पे डिसाइड करेंगे, तो हम अपना प्रेजेंट कभी नहीं जी पाएंगे। Correct. और जो आज की देश की स्थिति है कि हम अपने पास्ट को डिग कर रहे हैं, बच्चों को प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, बच्चों को फ्यूचर से डरा रहे हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो मुझे लगता है कि हमको वी शुड लिव इन द प्रेजेंट, रिमेंबर अवर पास्ट बट डोंट लिव इन अवर पास्ट। और आज की देश की आयरनी ये है कि हम पास्ट में जी रहे हैं, एंड द मैन हु प्रोमिसेस यू मैनी थिंग्स विल लीड यू नोवेयर। एक आदमी आपको बहुत सारी अगर प्रोमिसेस करके जा रहा है या दिखा रहा है ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला, आप वहीं के में रह जाओगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी से कि वी आर गिविंग फ्री राशन टू करोड्स ऑफ पीपल एवरी डे सिंस 10 ईयर्स, तो इसका मतलब हमारे देश ने तरक्की करी नहीं है। और हम अगर वोट, जो हमारा मौलिक अधिकार है, कि मैं कल ही एक बुक पढ़ रहा था, अमेरिकाज ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज डेमोक्रेसी, कि वो कैसे कंट्रीज़ को दबा के रखती है। तो वो उसमें एक ऑथर ने बहुत अच्छा एक कोट लिखा है कि वोट वाले दिन अगर हमें याद हो कि हमें क्या मांगना है तो हम देश को बदल सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उस दिन हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए और हम वोट डालने नहीं जाते। एक वोट हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन यही एजुकेशन है कि वोट की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हम वोट देने जा रहे हैं नहीं देने जा रहे हैं, वो भी हम किसी के कहने पर जाते हैं या किसी के कहने पर नहीं भी जाते हैं। और किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना, ये भी हम औरों के डिसाइड करते हैं। तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे, हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। और इंडिया, वो मैंने बोला ना, लैंड ऑफ फॉलोवर्स है, तो अभी वो स्लेव माइंडसेट में जी रही है कि हमने ये नहीं करना, हमने वो करना है, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो हमारा लॉजिकल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस पे चल रहा है। जिस दिन हम अपने लॉजिक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे। हम अब हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन पा पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे, उनको हेल्थ की और ये बेसिक यूटिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। वो सब सरकार को देने की ज़रूरत है, यहाँ पे सरकार नहीं दे रही है, इसलिए बाहर की सरकारों की तरफ हम लोग अट्रैक्टेड होते हैं। As an education entrepreneur, what leadership lesson has this journey taught you? हाँ, एजुकेशनल एडिपिन्योर, मुझे सबसे पहले बस एक ही चीज़ समझ आई है कि मैं हर बच्चे को बोलता हूँ यू कैन डू इट, पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मोटिवेशन, सेल्फ बिलीव, सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ अवेकनिंग, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप अपने खुद के भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हो, आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप क्लियर हैं अपने मोटिव में और पैशन में, तो अपनी टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको इम्प्रूव करिए और उसको ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करिए जीना। अभी हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, तो स्टार्ट लिविंग rather than existing, and I'm sure you can do it। और मेरा एक मोटो है लेट्स डू इट। So what challenges did you face while scaling Golden Bell's early years? चैलेंजेस तो बहुत आए लाइफ में, और चैलेंजेस आना बहुत अच्छी बात है। चैलेंजेस को फेस करके उनका सोल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आई वॉज नॉट ट्रेन्ड टू रन अ स्कूल। इट केम टू मी एज एन एक्सीडेंट। माई फादर रिटायर्ड सेक्रेटरी CBSE, उन्होंने स्कूल बनाया और हमारी झोली में आके गिर गया। तो उस टाइम आई वॉज डूइंग माई प्रोफेशनल जर्नी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन मैंने हर कलर को, हर कॉन्सेप्ट को, हर नंबर को, हर शेप को समझा, उनकी विजन को समझा, और ये समझा कि हर चीज़ की क्या वैल्यू लाइफ के अंदर। एंड आई देन स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, 1 2 3 का मतलब क्या है, ABC का मतलब क्या है। देखिए, वर्ड्स पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, नंबर्स पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप उनको किस तरह से यूज़ करते हैं वही आपकी एक आइडेंटिटी है। तो बहुत टाइम मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली ईयर्स का मतलब क्या है, उसको समझा, और उसके बाद उसको ग्रैब करते 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 आज
25 ईयर्स हो गए हैं मुझे. आई एम स्टिल लर्निंग एंड डूइंग अवर जॉब. लेकिन एक चीज़ अच्छी इस चीज़ में ये आ गई कि इस दौरान मेरी जर्नी में मुझे ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मिल गई, जिसकी वजह से मैं समझ पाया कि मैं शायद साइंस और कॉमर्स के लिए नहीं बना था, मैं बना था काउंसलिंग के लिए. और स्कूल रन करना, और वो भी अर्ली ईयर्स का स्कूल रन करना, एक काउंसलिंग ही है. So how do you see early education in India is evolving over the next decade, especially as more students are choosing to study abroad? देखो, अर्ली ईयर्स का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेरेंट कम्युनिटी हैं जो अपने बच्चों को अर्ली ईयर्स एजुकेशन से वंचित रखना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी. जब तक अर्ली ईयर्स एजुकेशन किसी गवर्नमेंटल बॉडी के फ्रेमवर्क में नहीं आता, जब तक वो ऐसे ही रहेगा. अभी आप सोचिए कि हम आज 2026 में हैं एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट अथॉरिटी और एफिलिएशन टू मॉनिटर एंड रेगुलराइज अ प्ले स्कूल. आप कहीं पे भी प्ले स्कूल खोल लेते हैं, in spite of the fact that the government has given proper institutional lands to run a play school. लेकिन आप अपने नेबरहुड में, एनवायरनमेंट में देखेंगे कोई भी एक हाउस में या कहीं पे भी स्कूल खोल लेते हैं. तो जब तक गवर्नमेंट इसको अपने अंडर नहीं लेगी, जैसे कि हायर एजुकेशन को गवर्नमेंट ने लिया हुआ, स्कूल्स को एंड हायर एजुकेशन को, इस तरह से प्ले स्कूल इंडस्ट्री की भी नीड ऑफ द आवर है कि अर्ली ईयर्स एजुकेशन शुड बी रिकग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर वो जिस दिन स्ट्रांग हो जाएगा, उस दिन आपकी पूरी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगी. और वो रेवोल्यूशन लाने के लिए वी नीड अ ग्रेट लीडर एट दी हेल्म ऑफ द अफेयर्स. वो किसी भी शेप में हो, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हो या सेंटर एजुकेशन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो मैं मिस्टर मोदी से अपील भी करना चाहूँगा कि आप सब चेंजेस कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी अपनी छत्र छाया डालिए, ताकि एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल ऑफ एवरी राइट, एवरी ह्यूमन बीइंग विच हु इज़ बॉर्न ऑन द प्लैनेट ऑफ लैंड ऑफ इंडिया. तो उसको एजुकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अर्ली एजुकेशन सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देने के लिए. That's correct, yeah. Do you see India is moving towards globally aligned education system, or what is the difference you still think? Abhi India is not moving. Few Indians are at the center stage of the financial or corporate job. Majority of the Indian students who are going outside, they are going just for the sake of getting a stamp of foreign education, and they are returning to India. Yeah. ठीक है. So and likewise, in the last few years, I have seen many foreign universities setting up their campuses in India. Yeah. So I'm not understanding what is the purpose of that. आप अपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते कि हम अपनी बच्चों को अपनी ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं और वही एजुकेशन प्रोवाइड करें जो कि ग्लोब में मिलनी चाहिए. वाई डू वी नीड टू ट्रैवल टू अ पर्टिकुलर कंट्री टू गेट दैट एजुकेशन व्हेन वी आर कॉम्पिटेंट एनफ टू प्रोवाइड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी country itself. So we Indians are not moving as per, they are just going for this fun of enjoying their 4 and 5 years in a foreign land and then coming back to India. Right. Thank you so much. So these were few descriptive questions which we've asked from Dr. Rajiv. I'm sure बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिला है. आप कुछ क्विक रैपिड फायर्स खेलेंगे. कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपसे. सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस विद मी. आई रीड इट आउट फॉर यू एंड वुड लाइक यू टू आंसर. सो वन लाइफ स्किल एवरी चाइल्ड मस्ट डेवलप अर्ली. Understand yourself. Okay. And one parenting myth you would like to break. Parent is the best advisor. Thank you. One quality that makes student successful abroad. Understanding your total abilities and strengths. Okay. आपके कुछ ऐसा मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो कि ओवरसीज स्टडी के लिए अपने बच्चों को रेडी कर रहे हैं. One message which I would love to give to every parent is, सबसे पहले तो अपने बच्चे को समझिए, उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझिए, और उसके बाद जब उसका डिसीजन लेने का टाइम आता है, जनरली व्हेन द चाइल्ड इज़ इन ग्रेड 8th and 9th, देन चूज़ ए राइट काउंसलर. और वो राइट काउंसलर चूज़ करते करते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है. तो मुझे लगता है कि पंकज जी जो मेरे सामने बैठे हैं, इनसे अच्छा आपको ओवरसीज़ एजुकेशन में गाइड करने के लिए कोई नहीं मिलेगा. हम लोग
करियर काउंसलर नहीं है, हम लाइफ स्किल्स काउंसलर हैं, लेकिन पंकज जी इज़ अ करियर काउंसलर एंड स्पेशलाइजिंग इन ओवरसीज एजुकेशन. So I think he should be the best choice for you and for the future journey of your and your child's dreams. So Dr. Gupta, thank you so much for sharing such insightful perspective. Today's conversation clearly reinforces one important message. Global success is built on strong early foundations. At Kia Consultant, while we guide students through their study abroad journey, conversations like these remind us that the journey truly began years earlier with the right mindset, value, and education. Thank you for being a part of Kia Consultant Global Leaders and Educators and for contributing to the larger vision of shaping globally confident students. To our viewers and listeners, stay tuned for more insightful conversations with global leaders and educators from India and across the world. This is Pankaj Sharma signing off.